हेलो, प्रणाम स्वामी जी। हाँ। तुम लेट क्यों? नहीं, वो मेरा शुरू नहीं हुआ। हाँ, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या स्वामी जी? इसमें मैं वही ये तो पता नहीं है। हो रहा होगा, रेड बटन आ रहा है तो हो रहा होगा। रेड बटन आए हाँ, हैं। लेट। हाँ, इधर लेफ्ट साइड में लेफ्ट बटन है, सो इट मस्ट बी हैपनिंग। ओके, सो शुड वी स्टार्ट स्वामी जी? यस। यस। तो गुड इवनिंग एवरीवन। Today we have decided this interesting topic, and that was suggested by Swamiji himself. And the topic was uh, living in गुरु। teachings of Sri Ramakrishna. So, the practical aspect of teachings of Sri Ram. नहीं नहीं नहीं, आज वो तुम तो बताया नहीं। मैं तो गुरु पूर्णिमा बताया था, गुरु पूर्णिमा कल है। ठीक है। आज गुरु पूर्णिमा डिस्कस हो, लिविंग इन लाइफ, प्रैक्टिकल टीचिंग्स। Okay, over to you, Swamiji. ओके। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर प्रेजेंट। 3 4 आर देयर। जस्ट रिसेंटली गुरु पूर्णिमा is over, so I wish to share throw some light. See, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Reva Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namah. Guru, as we know, without Guru, we cannot achieve the moksha. And as we know, the Vedas birthday observed as a Guru Purnima by all of the most religious organizations. Some of the religious organizations, they observe the birthday, exact date of birthday of Guru. But we and other organizations also observed the Vyas birthday as a Guru Purnima. He is the Guru Guru. He knows the Vyas, Veda Vyas, Puranas. He has written and compiled. See, first, what does the Guru means? As you know, two letters Gu, Ru. Ru mane Andhaka, Ru mane dispelled. Actually, what Guru is dispelling us? So, they say, okay, first Guru try to remove our ego. Ego is the culprit. Ego is the cause of our ahankar. हमारा जीवन का दुर्दशा का कारण है अहम। गुरुदेव जो मंत्र देता है, जो रूटीन देता है, उससे साधन करने के बाद हम अहंकार को दूर कर सकता है। Actually, the status is ego is so strong. Sometimes we remove God from the throne and sit down on it. That is an important point. Due to strong ego, we remove God from the throne, सिंहासन से इसको हटा दिया, मैं बैठ गया. That is the meaning actually. Remove himself from this throne and sat down on the chair. How it is happening? See, whenever there are any problems come in the life, life is full of problems. Sometimes you solve it, sometimes you
not able to solve it. But when you are not able to solve it, you blame the God and you take upper hand and sit in the chair, remove the chair of the God. No, I will not accept this. I have to do it. I have to do it. Ultimately, it is failure. But ego prompting us, pampering us. No, you do, you try, but every time you fail, failure. That means ego is so powerful that you are not ready to accept the verdict or the decision of the God. That is why you have thrown the God on the throne. सिंहासन से उनको उतार दिया, उसका बात ही नहीं मान रहा. That is the very important point that Guru, we have to accept. But Guru is Guru or the Ishwar is directing us to do it. But problem starts there. Our ego is so strong. So you remember that don't remove God from the throne because you have a strong ego. Then need of Guru as need of Guru is what is the need? See, dharma, artha, kama, moksha. These are the four things. Dharma, artha, kama. This, for this we need the teacher. But for moksha, we need Guru. Teacher cannot give. Teacher cannot give you. So for moksha, we have taken Guru to achieve moksha, not dharma, artha, kama. For that, teachers available. One is mental growth, other is spiritual growth. That is mental growth is teacher, spiritual growth is Guru. And what Guru does actually, just like a sculpture, from big stone through his art, sculpture, make a beautiful image of God. So they compare with this. Guru remove all our unnecessary things from the heart, make our heart beautiful. That means Guru makes us human being from inside, removing all our negativity, removing all our bad things. That is the part of the Guru. That means he is making beautiful human beings inside. If inside is good, inside is beautiful, then you are a beautiful human being. But outside you may be very good, smart, with dress and other things, but you are not a human being. So that is the Guru do it. From negativity to positivity, that is from inside. Our inside make it rich. That we call it dharma. What is dharma? What is God?
going temple, pray, and other things, spiritual practice, rituals. That is not a dharma. Dharma is nothing but a karma. कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है. As Swami Vivekananda says, work and worship, work as worship, work is worship, work and worship, work as worship, now work is worship. So, dharma should manifest in your karma. Karma means whatever karma you are doing in the life, morning to evening, dharma should manifest in your karma. Dharma hi karma hai, karma hi dharma hai. It should not be in the brain, in the books, so that we can remember all the books that is in the brain. So dharma remains in the book, whatever books we read. But if कर्म तो काम करता है, उसमें प्रतिफलन, उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो धर्म नहीं. कर्म धर्म इसलिए कहता है धर्म एंड कर्म इक्वल. Only change your attitudes. It is a dead dharma, if it is in the book. So another things make us understand. गुरुदेव हम लोग के समझाता है, देखो कर्म का थ्रू ही धर्म का, इसलिए कर्म ही धर्म. धर्म करने के लिए तो कर्म करना पड़ता है. ऐसा कर्म करो जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो, दैट इज धर्म. नॉट रीडिंग, memorizing, and reading, listening, so many things. Then another thing, Guru never give any knowledge to you. कुछ नहीं देता है. वो क्या करता है, जो हमारा अंदर विद्यमान है, करुण गोस्वामी विवेकानंद भाई, उसको थोड़ा जागृत करता है, जगा देता है. ये गुरु का पाठ है. हमारा अंदर जो अच्छा विचार है, अच्छा शक्ति है, उसको जागा देता है, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हम लोग को कोशिश करता है. So that is one of the point. And another important point, जीवन शुरू होता है जब गुरु रहता है. जीवन का शुरू नहीं होता गुरु नहीं रहने से. क्यों? गुरुकरण का क्या जरूरत है? एक्चुअली गुरुकरण, गुरु मेक अस ए डिसिप्लिन वर्कर और डिसिप्लिन है. अगर हम डिसिप्लिन हो जाए तो हमारा जिंदगी शुरू हो जाती. So that he has given another examples also. We have a lot of blessings from our parents. But that parents' blessings can take you, but not this parents' teachings not able to reach the destination of your life, that is moksha. Parents' blessings make you forward. बहुत पढ़ाई किया, बहुत किया, नौकरी किया, सब कुछ. Blessings of parents. But when there is coming to the destination of the life, it is not, parents' blessing is not working much. इसलिए जैसा एक बोट, उसको मास्ट नहीं है तो क्या होता है, आगे जा सकता है, इधर ठकता है, इधर भी ठकता है. तो पेरेंट्स ब्लेसिंग से हम ऐसा जाते हैं.
कभी इधर टक्कर खाता है, उधर टक्कर खाता है। हमारा जो डेस्टिनेशन वो रास्ता में जा नहीं पा रहा है। क्यों? गुरुदेव का ब्लेसिंग्स आपको उसी रास्ता में डेस्टिनेशन तक ले जा सकता है। बिकॉज गुरुदेव ब्रिंग्स द अनुशासन, कहता है डिसिप्लिन इन द लाइफ। वी आर वीक बिफोर टेकिंग इनिशिएशन, those are very sincere. You compare with them, you see your mind, you are weak because at time before taking guru, you are in disciplines, you are weak. After taking initiation, you slowly discipline होने लगता है. Then you become strong. Disciplined person are strong inside. Indisciplined persons are weak. Weak persons, the person who has no discipline in the life. Strong persons who has a discipline in the life. Guru, that part take care. क्यों? गुरु का बाद हम लोग कभी नहीं डिफाई कर सकता है। सुबह शाम को बैठो, ईश्वर की नाम लो, ईश्वर की चिंता करो, तो जीवन ही ब्रिंग्स लाइफ इन द डिसिप्लिन, and ultimately time will come when you are become strong, means you are disciplined. I am telling from the inside. अंदर से शक्ति बन मिलता है, बाहर से नहीं। बाहर से अपनी जितना भी कौद हो जाए, जितना भी पैसे हो जाए, ऐश्वर्य हो जाए, बहुत तगड़ा बॉडी हो जाए, यू आर नॉट ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, वीक पर्सन, वीक फ्रॉम इनसाइड. We should be strong from inside to face any problem in the life. So that brings Guru's advice. That is discipline brings, make us strong, and we become peaceful, happiness in the life. स्वामी जी ने बताया ना, Vignesh is the day, strength is life, Vignesh is the day. अगर strength मतलब mental, and you will be शक्तिशाली बन जाओगे जब यू आर डिसिप्लिन. कभी भी कोई व्यक्ति का अंदर देखो जो शक्तिशाली व्यक्ति है, अंदर से लाइफ इज पूरा रेगुलेटेड, फुल्ली डिसिप्लिन. Then slowly when you become disciplined, you become strong from inside. That जो तुमको मिलता है वो लाभ मालूम होता है, is sufficient for you. No insufficiency is not there in your mind. Whatever you have, sufficient for you. Contentment will come. Peace will come. Sufficient for you. Sufficient, that is by Guru Kripa. प्राप्त वस्तु पर्याप्त हो जाता है. प्राप्त वस्तु हमारे पास पर्याप्त हो जाता है. Then Gurudev change your attitude to the world. Gurudev change means through practice we change our attitude to the world. How? The more you are disciplined,
more strength inside, then you see your mind will be in the God. जो शक्तिशाली होता है, स्ट्रांग होता है, उसका माइंड ईश्वर में रहता है। जो दुर्बल होता है उसका मन शरीर में रहता है। दुर्बल जो उसका माइंड है वो शरीर में रहता है, और जो स्ट्रांग है उसको उसका माइंड ईश्वर में रहता है। तो राम सुखदास जी का एक अच्छा बात याद आ रहा है। आपके पास गुरु भी आ गया, इष्ट भी आ गया, दोनों एक शब्द आपका सामने रिकॉर्ड हो। तो प्रश्न है, किसको पहला प्रणाम करूं, इष्ट न गुरु? राम सुखदास ने कहा नहीं, पहले गुरु को प्रणाम। क्यों? गुरु आपको इष्ट को मिला है, इसलिए गुरु को पहला प्रणाम करना चाहिए। तो हम लोग का जीवन में गुरु का स्थान कहाँ है? इतना ऊपर ऊंचा उठाया राम संत राम सुखदास, सब जानते हैं। तो इतना विश्वास चाहिए, विश्वास चाहिए। हाँ, हम जो सिंहासन से ईश्वर को उतार देता है, जो बताया था, बिकॉज लैक ऑफ फेथ, हमारे ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है। इतना अहंकार हो गया, ईश्वर पर विश्वास नहीं है तो ईश्वर को सिंहासन से निकाल दिया, मैं बैठ गया। ये तो हो रहा है जिंदगी में, सिंहासन से उतार दिया उनको, उसको पर विश्वास नहीं, मैं कर देख लूंगा, वो तो देने वाला कुछ नहीं है, कुछ नहीं दे रहा है, बस ये सब चलते रहता है। विश्वास, श्रद्धा, दो चीज चाहिए। तो कौन सा गुरु अच्छा है? रामकृष्ण देव खुद बोला, अब वो स्टोरी जानता है। ये एक तालाब है, एक पॉन्ड है, और घाट्स, एक पानी की कहता है जल, पानी, वाटर, एक्वा। तो किसी नाम में कोई भी मंत्र दे गुरु, चाहे अल्लाह दे, पानी दे, लेकिन वो पानी ही है, ब्रह्मा व वो ईश्वर सब एक ही रास्ता में ले जा रहा है। इसलिए हम लोग का अंदर विश्वास, श्रद्धा नहीं है, इसलिए दीक्षा लेने के बाद सोचता हुआ, अरे उससे लेने तो अच्छा था, उससे लेने तो अच्छा था, but we have not understand the meaning of the Diksha. Diksha is a means to reach the destination. दीक्षा डेस्टिनेशन नहीं है। दीक्षा लिया हमको साधन भजन करके रीच द डेस्टिनेशन। एक बड़ी एग्जाम्पल दिया है, अगर कोई फार्मर कोई बीज खरीद के बीज लेके घर में रख दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं, मर जाएगा। अगर बीज को मिट्टी में लगा दिया, मिट्टी में डाल के पानी देता है, सब जो कुछ मैन्योर देता है, कुछ दिन पर उसको देखता है कि पेड़ निकल गया। तो ऐसा ही दीक्षा का बाद, आप गुरुदेव का बाद जब ध्यान जो बताया नहीं करेगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकता है। आगे मतलब आपका अंदर कुछ नहीं होगा, बिल्कुल एक ही रह जाएगा बीज। मंत्र ऐसा ही, फार्मर का माफी सीड्स है, उसको खिलाना है, उससे पौधा आएगा। इसलिए जो करना चाहिए करना।
जब ध्यान जैसा पानी देता है जीता है। और तो ये दीक्षा मंत्र जो मिलता है, मंत्र जो जितना वो मंत्र को ठीक से प्रकाश करने के लिए जो मेहनत करता है उसके पास आ जाता है। नहीं तो अरे 40 साल दीक्षा लिया कुछ नहीं हो रहा है, अरे क्या होगा, कुछ तो करो। क्या बढ़िया एग्जाम्पल दिया। किस सीड्स, गुरु, गुरु का मंत्र एक बीज है, सीड्स है, उसको हमको देखभाल करके खिलाना है, तब हमारा अंदर उसका रिजल्ट आए। जैसा डॉक्टर मेडिसिन, डॉक्टर क्या करता है, मेडिसिन लिख देता है। तो क्या करते हैं हम लोग, मेडिसिन परचेज करके खाना पड़ता है। परचेज करने से नहीं होगा, लिख दिया, मेडिसिन परचेज किया, खाया, तो क्या कुछ नहीं रिजल्ट होगा। ऐसा ही गुरुदेव जो दीक्षा देता है, मंत्र देता है, मंत्र को जपना पड़ता है, जपना का थ्रू खाना, ऐसा करके सोच सकता है। तो गुरु जो मंत्र, ये जस्ट लाइक ए सीड्स, हम लोग गुरुदेव का हर एक बात है जो घंटा क्या था, we must have a faith and श्रद्धा। ये नहीं तो हम लोग अनाथ है। ईश्वर को सिंहासन से उतार दिया, लैक ऑफ फेथ एंड श्रद्धा। विश्वास अपने आप मालिक बन गया, ड्यू टू ईगो, अब जो अनाथ ही हो गया। अब ऊपर कोई नहीं है देखने को, तो अपने आप को कर्ता मान लिया। हाँ, हमको कर्ता बना दिया। तो श्रद्धा विश्वास से मंत्र का शक्ति प्रकाश होता है। जो मंत्र का शक्ति प्रकाश होगा, श्रद्धा विश्वास, विश्वास, विश्वास के बारे में हम लोग मन में इतना विश्वास नहीं आता है। कभी भी कुछ शंका आ गया, कोई समस्या आ गया, उस समय हम लोग ईश्वर को छोड़ देता है। कोई कोई समस्या का तो समाधान हो जाता है, कोई कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। उस समय हमारा ईगो, हमारा डिजायर क्या बोलते हैं, करना ही है, करना ही है, करना ही है, मिलना है, मिलना है, मिलना है। उस समय क्या किया, ईश्वर का पूरा विश्वास चला गया, कुर्सी से निकाल दिया, सिंहासन से निकाल दिया। तो आपको पता है जो कुछ होने वाला नहीं है, तब भी अहंकार से होगा होगा होगा, अल्टीमेटली होगा नहीं। बीच में क्या हुआ, सफरिंग हुआ, फिर मानना पड़ा कि नहीं तो आज तो नहीं होने वाला है। तो श्रद्धा विश्वास मतलब गुरु को ईश्वर है। जितना भी प्रॉब्लम आ जाए, जो प्रॉब्लम सब करना है सब कर लो, तुम्हारा दिमाग से, तुम्हारा बुद्धि से, तुम्हारा कोशिश से। कुछ कुछ प्रॉब्लम कभी समस्या समाधान नहीं होगा, उसमें तुम्हारा मन में दुख आता है, सफरिंग आता है, तो टेक इट एज द गॉड्स विश। ईश्वर मुझे ऐसा रखना चाहता है। एक ब्यूटीफुल सेइंग्स है, we are the what we are
the result of our karma. What we are. हम लोग अभी जो है, जो जहां पर है, जहां पर स्थिति है, हमारे कर्म के मुताबिक, हमारा कर्म के मुताबिक इसका जन्म, सबका जन्म एक ही जगह नहीं हुआ, सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, वाइफ अलग है, चिल्ड्रन अलग है, दैट इज माई ओन कर्म. तो ये भी एक पॉइंट है, माइंड में लाने से आदमी को तसल्ली मिलता है, काइंड ऑफ रिलीफ. शिक्षक, गुरु की जो एक चेतना थे, जो हम लोग का कॉन्शियसनेस है, उसके लिए काम करता है एंड गिव अस रियल पीस ऑफ द. Respect for Guru is most important, as you have taken the initiation. So we should respect the Guru. Ishta depends on him. Guru means through Ishta. अभी क्वेश्चन पूछो, मेरे पास जो पॉइंट था तुम लोग तो बोल दिया. स्वामी जी, वो आपका जो लेक्चर था वो बंगाली में था सैटरडे, तो हाँ उसमें हाँ. आप वो स्वामी वीरेश्वरानंदी का ओ बता रहे हाँ हाँ थे हाँ, गुरु सेवा के ठीक बारे ठीक है, में. ठीक. वो मुझे ठीक से वो समझा नहीं, बता, पर हाँ हाँ. वो पॉइंट थैंक यू. बताता हूँ. वो पॉइंट मैंने स्किप कर दिया, मैंने लिया नहीं ध्यान में आया नहीं. See, all devotees always complain, ये guru, we can very rarely meet the guru. Sometimes some devotees have never met the guru once taking the initiation. तो विवेकानंद जी को पूछा तो कैसा होगा, इस गुरु से तो मिलता नहीं. तो विवेकानंद जी ने बोला कि गुरु का फिजिकल देखना मिलना का इतना जरूरत नहीं है. गुरु के श्रद्धा देना है तो रिस्पेक्ट करना है, तो गुरु जो बोला है उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो. कृष्ण जी बोला, डू नॉट वरी दैट यू कैन नॉट बीट मी और सर्व मी. द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर मी is to chant and meditate regularly as instructed. Whether you meet me or not, you are always in my prayers to Sri Ramakrishna. And know for sure that he is always with you and taking care of you. So do not be sad. Meditate regularly, do japa regularly. That is the best seva of Guru. Yes, that is the important point. That seva, that real seva, following it teaching, following teachings. स्वामी जी, Yes. एक आपने पुराने एक लेक्चर में हमें एक एग्जाम्पल दिया था दैट फॉर लव फॉर गॉड के लिए आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे लड़की की शादी हो जाती है एंड वो ससुराल जाती है, तो एट दैट टाइम शी वाज इन टू मच ऑफ पेन कि घर छोड़ के जाती है, और फिर ससुराल जाने के बाद सडनली दैट लव फॉर फैमिली, इन लॉज फैमिली,
बच्चू और ये फिर वो पूरा घर Yes, को yes, yes. Yes. तो स्वामी जी इन दिस कॉन्टेक्स्ट आवर मेन डिस्कशन इज गुरु जो ईगो कम कर देता है तो बेसिकली लव फॉर गॉड बढ़ जाता है. सो कुड यू जस्ट हाईलाइट मोर ऑन हाउ टू increase our love for God? Any other angle you wish to add? See, that is the examples. Easily you can understand how a lady before marriage and after marriage, there is a transformation in its mind. Before marriage, his father, mother, brothers, sisters, everything, all love to family members. After marriage, husband, society, few days, your mind is so mental setup disturbed because of the parents. So that is the real pictures. Every ladies after marriage, he suffers because of the detachment of the parents. Slowly, she transformed herself. She understood husband, house is everything. So how we shifted love from parent side to the husband side. Mother is asking her to come and come. I have not seen so many years. But that lady, daughter, giving the answer, how can I go? I have to go morning, prepare food for her husband, then my child is there to take care. I will come later on. That is practice. That is a practical incident. But actually, see how much transformation has come. Her mother is coming to come, but coming to the house. But this lady is not going because to serve their husband and son, child. So this transformation happens, shifting love from their parent to the husband. So our love for that world, we can shift love for the worldly things to the God, as Sri Ramakrishna used to say, that विषय विराग ईश्वरे अनुराग, विषय विराग ईश्वरे अनुराग. तो अभी आफ्टर मैरिज द लेडी पेरेंट्स में विराग आ गया, हस्बैंड में अनुराग आ गया. तो दैट इज ए क्वेश्चन ऑफ माइंड एंड लव. तो राम सुखदास ने कहा कौन भक्त है? व्हाट इज द रियल साइन ऑफ द डिवोटी? He says, the devotee is he who thinks he has nobody in this world except God. He is the real bhakt. Through sadhana, time will come. जो ईश्वर छोड़ के मेरा कोई नहीं है, the sign of bhakt. कि this kind of thinking, अरे कौन है मेरा? Then how parents, husband, wife, children, you think they are not so much helpful or useful in your life except God. And if you think my husband, my wife, my children, my house, my father and mother, first priority, and second priority is coming God.
That is the difference. And the devotee slowly, first priority God, second priority my family members. As I am got quality life in a family. So that changes should come. Priority. That will be the mind. Ramakrishna Dev ne kaha that you have to stay in the, how can he stay in this world? रामकृष्ण देव कहा, अरे तुम क्यों सोचता है हमारा हमारा हमारा? अरे सब सोचो मेरा नहीं है, सब तुम्हारा है, मैं तुम्हारा है. चेंज, देन वेरी इजी टू लिव इन द वर्ल्ड एज ए लीड ए फैमिली लाइफ. क्यों सोच रहा है मेरा मेरा मेरा? मेरा को तुम्हारा है, तुम्हारा है. Then changes come. Actually, this kind of thinking is necessary. Introspection is necessary. The more you introspect, अरे दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है. 5 minutes every day you change. Then slowly love for the God will increase, and you will be slowly inside full of joy, peace. अब बाकी मेरा सब है, कोई काम का नहीं, आपको सब दुख दे. फैमिली मेंबर सब आपको दुख ही देगा, शांति नहीं दे सकते. और हम लोग पागल का माफी क्या करते हैं, शायद उसका शादी हो जाए मैं खुश हो जाए, उसका अच्छा नौकरी हो जाए मेरा लड़का खुश हो जाए. कुछ नहीं हो, शांति तो मिलेगा ही नहीं. तो इसलिए छोड़ देना पड़ता है. भाई जो होना है, यू हैव कम एज यू आर द मेकर ऑफ आवर ओन फेट, वी आर द रिजल्ट ऑफ आवर ओन कर्म. छोड़ देना चाहिए. क्यों दुख है? मेरे पास तो ईश्वर है. हम लोग को बस दुख क्यों है? मेरा पापा का क्या हो गया, हस्बैंड का क्या होगा, वाइफ का क्या होगा. अरे ये क्यों इतना सोचता है? सोचो मेरे पास ईश्वर है, ईश्वर है. Then this is the way of thinking. Actually, this way of thinking changes you. बस और कुछ क्वेश्चन क्या अमित? Yes, thank you, Swamiji. बस रेड्डी जी कुछ पूछ रहे हैं. महाराज, आपने लास्ट टाइम बताया था कि ईश्वर पे विश्वास हो जाने से सब कुछ मिल जाएगा आपको. दैट इज द नेक्स्ट वे ऑफ अटेनिंग लाइक एवरीथिंग. ईश्वर पे विश्वास होने से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा. सो फ्यू मोर स्ट्रेस ऑन दिस पॉइंट महाराज. When faith, विश्वास ईश्वर के ऊपर जितना बढ़ते जाएगा, इतना ही आप धनी हो जाओगे. धनी व्यक्ति का कोई दुख रहता है? गरीब व्यक्ति का ही दुख रहता है. इसका मतलब क्या? कैसा धनी हो जाएगा? अरे हमारा चाहिदा कम हो जाएगा तो धनी हो गया, चाहिदा बढ़ जाता है तो गरीब हो रहा है. ईश्वर का पर विश्वास होके ईश्वर जितना बढ़ेगा, हमारा चाहिदा कम होते जाएगा, क्योंकि ईश्वर को पा रहा. तो क्या आप धनी हो जाएगा? सब प्राप्त. प्राप्त मतलब आपको पाने के कुछ है ही नहीं. सब तो धीरे धीरे धनी हो. धनी व्यक्ति का क्या चाहिए? सब कुछ है, पैसा है, टाका है, पावर है, सब कुछ. गरीब नहीं है.
इसी तरह हम लोग तो धनी बन जाएगा। श्री रामकृष्ण हैज कम टू मेक अस रिच, नॉट मेक अस पोर। धनी बनना, धनी होने से कुछ चाहिए ही है नहीं। क्या समझ में आया अभी? यस तो महाराज। सब मिल गया। मिल गया मतलब जगत का the worldly matters, no requirement of the worldly matters. Make your life get joy, peace. That is coming from the by your faith, Shraddha to God. Then you are rich person. सब मिल गया, और क्या चाहिए? क्या ठीक है? यस महाराज। मधुमिता का कुछ क्वेश्चन नहीं है? नहीं महाराज। Now we can close part of it. Yes, thank you, Swamiji. And I think this is the ये record हुआ है, so I will upload it at a later date. Thank you very much, Swamiji. Pranam. Thank you, thank you. प्रणाम महाराज। Thank you, Pranam. Swamiji. Pranam. Love and blessings. Thank you. Thank you so सब much. अच्छा रहो, शुभेच्छा। जय ठाकुर। जय Thank you so much.